इस वक्त जी न्यूज़ भारत का पहला ऐसा चैनल है जो फ़िलिस्तीन में मौजूद है। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ हनीन है जो कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। हेलो हनीन, व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर बिकॉज यू कैन सी द फाइट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन हमास एंड द इजराइल। Yeah. So whatever goes on in Gaza affects everything here in the West Bank, because now we have a strike. We have the strike since 3 days now because of the bombing of the hospital in Gaza, and also we have like a lot of protests and demonstrations here. People have a lot of clashes with the Israeli soldiers here on the checkpoint, on the DCO checkpoint. We have more than 50 martyrs now in the West Bank, and more than 37 children got killed, and and also Israel is trying to silence the journalists. Yesterday, five journalists was arrested in Ramallah, and also more than 7 journalists in Hebron, and also many journalists around the West Bank are being arrested now, because Israel is trying to silence our voice and silence our message and our narrative. Yeah, but Haneen, Hamas, whatever Hamas did in Israel, they killed around 1,400 innocent citizens No, of it's Israel. 3,000. In No, the in Israel, Israel, yeah, what yeah. Hamas did, this is a terrorism. It's not a terrorism, it's a response to whatever Israel is doing among the years. Israel has been killing Palestinians and kidnapping Palestinians since 1948 till now. And whatever we do is nothing comparing to what they are doing. And they are like, what if you look to the numbers, this war is like, maybe it's the most war that Hamas could kill from Israelis, but they doesn't go after civilians. They go after soldiers, and soldiers are like part of this war. So But the 1,400 citizens have been killed in Israel, in the Sedrot area, in the Ashkelon, and in the Kibbutz Beri and the Kibbutz Kfar Aza. well, yeah, in front of this number, there's multiple times huge numbers here in Palestine. They are killing Palestinians since years, and nobody does anything. And when we try to respond to this attack, and to respond to whatever they are doing, all of this violence and kidnapping and killing, what we do is nothing comparing to them, and it's our response. So if I came to your house and attack you, if you slap my face, it's not terrorism, it's self-defense. And that's what we are doing here. We are defending ourselves, and people are defending their life, and they are they are trying to respond and say that we are here, we exist. Okay, honey, what is the current situation here in the West Bank? If we talk about only the West Bank, how life is going on here of the Palestinians? Among the Among time the West Bank, this time. well, okay, we have a lot of strikes. Like, most of the time we are closed. The schools are closed. The market is closed because we have the strike to to stand with Gaza at least. So all we do is protests, peaceful protests. But we also have Israelis. They don't let us go. They are everywhere. Yesterday in the night, they attack the streets of Ramallah, and they arrested multiple people here, and they are doing it among the years. It's not something new. It's sad to say that we used to it, but when we want to talk about it, and we want to be loud, and to try to make the world hear our voices and hear the Palestinians cry,
then suddenly we are terrorists, you know, like they are attacking. They are terrorists. We are not attacking. We are responding to the attacks that we तो have. देखिए यहाँ पे हनीन बता रही हैं कि कैसे हालात अभी फ़िलिस्तीन के इस वेस्ट बैंक में बने हुए हैं। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से फ़िलिस्तीन से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आग लगाई गई है, आगजनी की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप ग्राउंड ज़ीरो से देखिए। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर आग लगाई है टायरों में और उसके ठीक पीछे इजरायली सेना की तैनाती, इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर तैनात है और इनकी संख्या इस इलाके में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रमल्ला में जो प्रदर्शनकारी हैं, सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। आगजनी की गई है, टायरों में आग लगाया गया है। यहाँ आंसू गैस के गोले रुक रुक कर छोड़े जा रहे हैं। एम्बुलेंसेस यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है और अब देखिए ये धुआं यहाँ पर उठता जा रहा है। जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है क्योंकि भारत का पहला ऐसा चैनल है जो फिलिस्तीन से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, वेस्ट बैंक से रिपोर्ट दिखा रहा है। वेस्ट बैंक में 2023 से लगातार हिंसा और तनाव की खबरें सामने आ रही है और इन सब के बीच में जब से हमास और इजराइल के बीच ये युद्ध शुरू हुआ है, वेस्ट बैंक में तनाव और हिंसा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक बार और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ पर आगजनी की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर इस वक्त जारी है रमल्ला में, वेस्ट बैंक में, जहाँ पर जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तेज गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, लोग यहाँ इधर उधर भाग रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और अब आप देखिए कैसे एक युवक, जो मुझे लगता है बहुत ही कम उम्र का वो युवक है, जो यहाँ पर आगजनी कर रहा है, लगातार आग लगा रहा है छिपकर। और ये आग की लपटें आप इस वक्त यहाँ से देख सकते हैं किस कदर यहाँ आगजनी की जा रही है। ये बड़ी तस्वीर आपको फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से मैं दिखा रहा हूँ, रमल्ला से, जहाँ पर यह हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और इजरायली सेना तैनात है। ये भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इजराइल ये कसम खा चुका है कि हमास के आतंकियों का वो अंत करेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माना जाता है कि हमास के प्रति अपनी सहानुभूति भी रखते हैं और इन सब के बीच में इनका ये हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहा है रमल्ला में, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में। भारत का पहला चैनल है जी न्यूज़ जो यहाँ पर पहुँचा है क्योंकि एक लंबा विवाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी चला आ रहा है। फिलिस्तीन प्राधिकरण के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ भी यहाँ लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई देता है। लेकिन अब आप देखिए कैसे आगजनी और तेज़ की जा रही है, हिंसा और तेज़ की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ आग की लपटों की वजह से पूरे इस इलाके में धुएं की तस्वीर आप देख सकते हैं। कैसा हिंसक प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी तरफ से लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, कपड़े बांध रखे हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके और यह हिंसक प्रदर्शन इस वक्त रमल्ला में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जारी है। जी न्यूज़ अपने पूरी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे कैमरा सहयोगी एस जयदीप आपको अपने कैमरे से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, वेस्ट बैंक में तनाव 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस दौरान इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस है वो यहाँ पर लगातार छापेमारी भी कर रही है, संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर रही है जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। और इसके बीच एक बार और मैं तस्वीर आपको उस तरफ की दिखाता हूँ। देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियाँ मौके पर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी आगजनी की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे आसमान में धुआं उठ रहा है, हाथों में झंडे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे फिलिस्तीन से मैं ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहा हूं। यह हिंसक प्रदर्शन लगातार रमल्ला वेस्ट बैंक में जारी है। जी न्यूज़ की टीम इस वक्त फिलिस्तीन में मौजूद है। ये फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है और रमाल्ला में हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने गजा पट्टी पर अब हमला किया है उसके बाद वेस्ट बैंक में भी यहाँ पर कई जगहों पर जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। अब तक लगभग 800 गिरफ्तारियां अकेले इस वेस्ट बैंक से हो चुकी, जहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीर मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहां का एक आइकॉनिक प्लेस है रमाल्ला का, यहीं से सरकार चलती है जो फिलिस्तीन प्राधिकरण है उनकी। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं चारों तरफ सन्नाटा है, सड़कों पर सिर्फ ज़रूरी गाड़ियां यहां पर चल रही हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं और साथ ही मैं देख रहा हूं सब कुछ यहां पर बंद पड़ा हुआ है। दरअसल फिलिस्तीन का यह वेस्ट बैंक 30 लाख की आबादी वाला हिस्सा है जिसमें लगभग 86% फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, 14% यहूदी लोग रहते हैं और यहाँ पर यहूदी बस्तियाँ भी पिछले कई सालों से इजराइल बसाता आ रहा है। और हमने देखा है कि जब से इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा है उसके बाद से फिलिस्तीन के इस वेस्ट बैंक इलाके में ही कई जगह प्रदर्शन हुए हैं और यहाँ पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में वॉर का तीसरा फ्रंट कहीं वेस्ट बैंक से ना खुल जाए क्योंकि हमास के जो आतंकी हैं
जो उनके मददगार हैं वो इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं और इजराइल की सेना, डिफेंस फोर्सेस इस वेस्ट बैंक पर भी पैनी नज़र रखे हुए हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस यहाँ पर पैनी नज़र रखे हुए है और हाल फिलहाल में जब से युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, कई बार इस इलाके में तनाव हो चुका है और तनाव के चलते ही देखिए सब कुछ यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, दुकानें सब बंद हैं। साथ ही यहाँ पर जिस जिस इलाके से मैं गुजरा हूँ, गलियों में सन्नाटा है। कुछ लोगों से बातचीत की, हालांकि यहाँ पर अरबी बोलते हैं लोग, अंग्रेज़ी कम बोल पा रहे हैं, लेकिन मैंने जो समझा उनके अंदर यहाँ पर काफ़ी गुस्सा भी नज़र आ रहा था। और आज मैं आपको जी न्यूज़ यहाँ फिलिस्तीन में पहुंचा हुआ है, जहां से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो वेस्ट बैंक में पहुंचा है, क्योंकि वेस्ट बैंक और गजा पट्टी यही दो इलाके हैं जिस पर फिलिस्तीन अपना अधिकार जताता है। इजराइल के कंट्रोल का यह क्षेत्र भी माना जाता है। इजराइल की सेना यहां पर अपना कंट्रोल रखती है, लेकिन फिलहाल यहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे इलाके में आपको कर्फ्यू जैसा हालात दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पर लोगों की कम मैं मौजूदगी देख पा रहा हूं। अपने कैमरामैन एस जयदीप के साथ मैं यहां से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन।